Hello students. Um, this is part 6 of chapter 6, that is life process of class 10th, and in part 5 we have already discussed the structure of digestive system of human body, and in that we have already discussed the alimentary canal and the digestive glands. Okay, so in this part we will discuss the working of digestive system and basic structure of tooth, because this part is specifically given in the NCERT textbook. It is included in the CBSE syllabus, that's why I will discuss this one. So let me first discuss the working of digestive system. That means how the digestion or the simplification of food takes place step by step in different parts of the digestive system. Okay, so working of digestive system. So as I have already told you in my previous part, the digestive system consists of oral cavity or the buccal cavity, then the esophagus is there, then stomach is followed by duodenum, then duodenum is followed by, here there is just behind this the jejunum is there, and then the ileum. Okay, now then ileum is followed by the large intestine. So here you can see the appendix, then cecum, and this is the ascending colon, transverse colon, descending colon, and then here is the rectum, then anus. Okay, then in associated glands, under associated glands we have discussed about the salivary glands which are present in the buccal cavity. There are 3 pairs of salivary glands, and then the liver is another gland, associated gland, then pancreas is another gland. So just a brief account of this structure I have given you, I have told you here, just to help you to recollect the structure of digestive system. Okay, now the digestion, the process of nutrition, as I have told you, it involves different steps, that is ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation, then egestion. Okay, so what are these steps? I have already discussed in my previous sessions. So how the ingestion of food takes place in human being. In human being, food is ingested through the mouth, and the food is put into the mouth with the help of hand. हम अपने हाथ से खाना मुंह में डालते हैं, ठीक है, एंड इस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट है आपका डाइजेशन. अभी ये जो डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is the simplification of the food. So the complex food is converted into simpler form, and food का components हम already पढ़ चुके हैं. There were 6 major components like lipid, protein, carbohydrate, minerals, vitamins, water and trophies. Okay, so these are the different components, but all these components are not digested in all the parts of the digestive system. कुछ कंपोनेंट माउथ में होता है डाइजेशन, कुछ कंपोनेंट का डाइजेशन स्टोमक में होता है, कुछ कंपोनेंट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है. तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, बिकॉज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड how the digestion takes place in mouth. In mouth, 2 types of digestion takes place. One is your physical digestion, okay, or you can say the mechanical digestion. The other one is chemical digestion. So what is physical digestion? हम जब मुंह में फूड को डालते हैं तब हमारे टीथ का काम क्या है? To cut the food and then chew the food and grind it. ठीक है, फूड को कट करना है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है, उसको च्यू करना है, फिर ग्राइंड करना है.
सो यहाँ पर कोई भी आपका केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. सो इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस. ठीक है, यहाँ टीथ मशीन की तरह काम करता है. सो इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस. So this type of digestion where the food is broken into small pieces is called physical digestion or mechanical digestion. Then simultaneously chemical digestion also takes place. As I have told you, the buccal cavity contains the salivary glands and the salivary gland produces the saliva. Okay, and the saliva contains the enzyme called salivary amylase which digests the starch. Okay, so but here enzyme is a chemical and this chemical digests the starch, so it is a chemical process. So this digestion is called chemical digestion. Okay, so now the role of teeth is to cut the food, chew the food and grind it, so it helps in mechanical digestion. And the tongue helps in mixing the saliva with the food. Okay, then the saliva contains the enzyme digests the carbohydrate. Okay, but this digestion of carbohydrate is not completed in the mouth. Okay, now you can see this is the oral cavity. In the oral cavity teeth are there. So here these are the cutting teeth, these are the tearing teeth, then these are the chewing teeth. Okay, as you know they are the incisor, then canine, premolar and molar. So they help in cutting the food or mechanical digestion. And here is the tongue, and this tongue helps in mixing the food with saliva. Okay, now I will explain here the experiment to show the effect of saliva on starch. So starch is the main carbohydrate that we take with our food. So here what we have to do, here I have explained the process what to do. Let me first read out the steps. So here we have to take test tubes. 2 test tubes were taken and that is labeled as A and B. Then test tube A will contain teaspoon full of boiled rice, and in test tube B 1 teaspoonful of boiled rice which were chewed for 3 to 5 minutes were kept. Okay, तो अभी हम 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं. एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस लिया और एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने बी लेबल किया हुआ है उसमें हमने क्या लिया, बॉइल्ड राइस जिसको हमने च्यू किया है. ठीक है, च्यू किया मतलब क्या है, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ है. लेकिन इसमें क्या है, आपका सलाइवा मिक्स नहीं हुआ जिसको हमने च्यू नहीं किया. ठीक है, अभी हम उसको 3 to 5 मिनट्स तक रख देंगे. ठीक है, उसके बाद उसमें हम 3 to 4 ml ऑफ वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे. उसके बाद हम कुछ समय के बाद हम उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में. तो अभी हमको देखने को क्या मिलेगा, टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू ब्लैक कलर होगा जबकि टेस्ट ट्यूब बी में आपका ब्राउन कलर होगा. ठीक है, ब्राउन कलर किसका है, आयोडीन का है. ठीक है, तो इससे हमको क्या प्रूफ मिलता है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है. इसमें हमने लिया बॉइल्ड राइस जिसको हमने च्यू नहीं किया और इसमें हमने बॉइल्ड राइस लिया जिसको हमने च्यू किया है. इसका मतलब राइस के साथ सलाइवा मिक्स हुआ है, इसमें राइस के साथ सलाइवा मिक्स नहीं हुआ है. अभी हम इसमें क्या किए, वाटर ऐड किए. ठीक है, इसमें भी हमने वाटर ऐड किया क्योंकि वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन दोनों में ऐड कर रहे हैं. और आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने से आपका
टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो राइस लिया, बॉइल्ड राइस, उसमें स्टार्च था, कुक्ड स्टार्च था। स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्शन होता है तब स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हमने जो स्टार्च लिया था या बॉइल्ड राइस लिया था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो जैसे का वैसे था। इसीलिए हमने जब आयोडीन ऐड कर दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब इसमें स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन दूसरे केस में, बी में, हमने क्या लिया था? स्टार्च मिक्स्ड विथ सलाइवा। सो सलाइवा में हमारा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, तो उस एंजाइम ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो अभी हमने जब आयोडीन ऐड किया, अभी नो मोर स्टार्च वाज देयर, उसमें स्टार्च नहीं था। स्टार्च ब्रेक डाउन होके, डाइजेस्ट होके वो कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया था। इसीलिए हमने जब आयोडीन ऐड किया तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमको सलाइवा का इफेक्ट किस तरह स्टार्च के डाइजेशन को अफेक्ट करता है उसके बारे में हमको ये पता चलता है। ठीक है, नाउ अभी फूड आपका कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ माउथ में। अभी जो फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड, और या फिर आपका जो स्टार्च है वो पार्टली डाइजेस्टेड है। वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड आपका यहाँ पर कहाँ आएगा? आपका ऑसोफेगस से आएगा। ठीक है, ये ऑसोफेगस में, दिस इज अ ट्यूब, ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात है, हम जब खाना को स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तब क्या होता है? ये एक बोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहा जाता है बोलस। सलाइवा के साथ मिक्स होके हम जब स्वैलो करते हैं फूड को, वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, so that it can pass easily through the ऑसोफेगस। ये ऑसोफेगस में क्या होता है? मसल्स होते हैं, थिक लेयर ऑफ मसल्स होते हैं, और उसके अलावा इसमें म्यूकस सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, म्यूकस एक स्लिपरी लिक्विड है जो कि इसको स्लाइमी बना देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, आपका फूड इसके थ्रू आसानी से स्टोमक तक आ जाता है। लेकिन ये आसानी से कैसे आता है? एक तो है म्यूकस, दूसरा है मसल्स। ठीक है, ये मसल्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर वेवी स्ट्रक्चर है मसल्स का, मतलब ये मसल्स रिलैक्स हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मसल कंट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ रिलैक्स हुआ है, फिर यहाँ कंट्रैक्ट हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद फूड जब यहाँ आएगा ये रिलैक्स हो जाएगा। सो इन दिस वे द फूड मूव्स इनटू द स्टोमक। सो दिस मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द ऑसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट, जो कि फूड को स्टोमक तक जाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। So here in both the diagram you can see how the food is entering into the stomach. ठीक है, यहाँ आपका देखिए मसल यहाँ कंट्रैक्ट हुआ है, यहाँ रिलैक्स हुआ है, फिर यहाँ कंट्रैक्ट हुआ है, फिर यहाँ रिलैक्स हुआ है, तो ऐसे करते करते वो स्टोमक तक पहुँच गया है। ठीक है, now what is stomach? Now I'll show you. This is the diagram of stomach. So here I have described the structure of stomach and what are the secretions in the stomach. So regarding the secretion of the stomach wall contains 3 tubular glands. Okay, 3 tubular glands are there which secretes the gastric juice. The gastric juice contains 3 substances. First is hydrochloric acid, then the enzyme pepsin which helps in digestion of the protein, and then mucus. ठीक है, ये 3 चीज़ मिलकर स्टोमक में डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में। और क्यों एसिडिक मीडियम चाहिए? क्योंकि ये जो एंजाइम पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अभी रहा आपका म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? जब एसिड सिक्रेशन हो रहा है, ये एसिड क्या कर सकता है? स्टोमक का वॉल को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसी एसिड से स्टोमक का जो वॉल होता है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ जो फूड है आपका, कौन सा फूड डाइजेस्ट हुआ? प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, लेकिन ये प्रोटीन भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। तो अभी स्टोमक में कौन सा फूड है? पार्टली डाइजेस्टेड स्टार्च दैट हैज़ कम फ्रॉम द buccal cavity, then the partly digested protein of the stomach. तो अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्टली डाइजेस्ट हो गए हैं, और ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है? चाइन। ओके, देन द चाइन गोज टू द इंटेस्टाइन। ओके, so now as you can see, this is stomach. The food has come into the stomach, and in the stomach the secretion here it shows the that is when the food comes in the stomach expands. Then here the sphincter is there, as I was telling you, the circular muscle is there which act as a valve. So once the food enters into the stomach, the backflow of the food is prevented by this sphincter. Okay, so it will never go back to the esophagus. Now this food particles mixes with the saliva. Now these are secretion of the arrow mark shows the secretion of the gastric juice that contains the acid, enzymes and the mucus. Then the food is mixed with these three things and digestion takes place. Now again here you can see there is another sphincter. Okay, that means circular muscle is there which act as valve. So once the food enters into the duodenum, that is small intestine, the food will never come back to the stomach. Okay, so what is the role of stomach? It serves for food storage, formation of chyme. So what is chyme? Slurry of food. So it is a mixture of food, mucus, gastric enzyme. Then this is the part where the protein digestion starts. Next is small intestine. Now the partially digested food, that is chyme, enters into the small intestine. Okay, and the small intestine is the largest part of the alimentary canal. It is about 6.5 meter. See how long it is, but how it is accommodated in our body. Okay, now the small intestine is very narrow and arranged in the form of a coil in our belly. Okay, and that's why it is called small intestine. So the small intestine is the site of complete digestion of food. So in the stomach, protein is partially digested. In the buccal cavity, the carbohydrate was partially digested. Now the other component which requires digestion is lipid. So now the partially digested protein of stomach and partially digested carbohydrate of buccal cavity and the whole lipid or fat digestion is completed in the small intestine. Okay, now ये small intestine digestion कैसे करता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह का सिक्रेशन होता है। एक तो सिक्रेशन लीवर और पैनक्रियाज से आता है और दूसरा सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सिक्रेट करता है। ठीक है, तो लीवर से क्या सिक्रेशन आता है? लीवर से बाइल सिक्रेट होता है जो कि आपका एक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर फ्लूइड होता है जो आकर आपका गल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, नाउ यू कैन सी, ये देखिए स्टोमक में क्या है, हमारा चाइम है, सेमी डाइजेस्टेड फूड। स्टोमक से हमारा फूड आया कहाँ? डिओडेनम में। दिस इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी डिओडेनम में कहाँ से सिक्रेशन आ रहा है? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाटिक डक्ट से, और यहाँ लीवर से, गल ब्लैडर से होते हुए बाइल आता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है और लीवर से बाइल आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये इंटेस्टाइन खुद एक जूस सिक्रेट करता है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर एक्चुअली द डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ओके, next, what is the role of the small intestine? The small intestine role of bile, I will tell you first. The bile makes the acidic food. Now in the stomach the acid was there, the acid was mixed with the food, so the acidic food comes from the stomach and that is made alkaline or basic by the bile, so that the pancreatic enzyme can act on it. Remember, the peptic enzyme or the pepsin acts in acidic medium, but pancreatic enzyme acts in alkaline medium. Now the bile salt breaks the fats present in the food into small globule. Because the enzyme that is responsible for digesting the fat cannot directly डाइजेस्ट द फैट। जब तक फैट ग्लोबुल में, छोटे छोटे ग्लोबुल में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आपका जो एंजाइम है, लिपिड को या फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी ये हो गया बाइल का काम। बाइल का काम क्या है? एक तो है एसिडिक मीडियम को इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है जहाँ आपका सारे एंजाइम्स काम करेंगे। दूसरा है ये फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है और उसको कहा जाता है कि एमल्सिफिकेशन, और वो फैट ग्लोब्यूल जो फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है एमल्सिफाइड फैट। ओके, अभी पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आया उसमें क्या है आपका? पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम जो कि आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो बचा कुचा स्टार्च है या फिर आपका जो स्टार्च जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हुआ था उसको डाइजेस्ट करता है। अभी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन बचा कुचा प्रोटीन था, स्टोमक से आया था या फिर सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन था, उसको डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। ओके, देन लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? ये जो ग्लोबुलर फैट हुआ, फैट जो ग्लोबुल में कन्वर्ट हुआ उसको डाइजेस्ट करता है। सो उस फैट को हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफाइड फैट। ओके, नाउ अभी ये हो गया आपका लीवर से जो सिक्रेशन होता है बाइल का काम, और पैनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का काम। अभी रहा इंटेस्टाइन से जो सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस का काम। ठीक है, ये क्या करता है आपका? इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन का वॉल से सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल से सीक्रेट होता है। ये जो सिक्रेशन है वो प्रोटीन को पूरी तरह डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन डाइजेशन होने से एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? एमिनो एसिड। ओके,
अच्छा, उसके बाद आपका जो ये सिक्रेशन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ तो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था माउथ में, या फिर पैनक्रियाटिक जूस से पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था। अभी पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने से, कंप्लीटली डाइजेशन होने से क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है हमको? ग्लूकोज। अभी हमारा फैट जब डाइजेशन होता है इन द बाय द इंटेस्टाइनल जूस, तब ये क्या बनाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? व्हाट कंक्लूजन वी आर गेटिंग? प्रोटीन डाइजेशन होने से एंड प्रोडक्ट मिलता है एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने से एंड प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज। फैट डाइजेशन होने से एंड प्रोडक्ट मिलता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ 2 चीज़ मिलता है, ठीक है। सो इन दिस वे द लार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्ज insoluble food molecules are converted into water soluble particles, ठीक है। तो अभी वाटर soluble सॉल्यूशन हो गया फूड डाइजेशन के बाद। उसमें क्या है? जो डाइजेस्ट हुआ फूड उसमें क्या है? अभी एमिनो एसिड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है और ग्लूकोज है, जो कि सिंपल फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जर्प्शन क्यों ज़रूरी है? ऑब्जर्प्शन इसलिए ज़रूरी है कि डाइजेस्टेड फूड से बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स को एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए ये ऑब्जर्प्शन होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कहा जाता है विलाई। ओके, ये विलाई का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आई विल शो यू द डायग्राम। सो हियर यू कैन सी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है, देखिए इनर वॉल, ये इनर वॉल कैसे फोल्डेड है। यहाँ पर एक फोल्ड को दिखाया गया है। इसका जो एक फोल्ड है, देखिए ये पोर्शन को, ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन, इसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ये एक फोल्ड है। अब देखो, अगर ये प्लेन होता तो इसका सरफेस एरिया कितना कम होता। जब ये फोल्ड हो जाता है तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका एक फोल्ड। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फोल्ड है, तो यहाँ ये एक फोल्ड है। देखिए ये एक फोल्ड में कितने सारे फिर विली है, ठीक है। यहाँ पर फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इससे क्या होता है? आपका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अभी देखिए पिक्चर 3 में आप देखिए यहाँ पर कैसे ब्लड वेसल सारे सप्लाई हुए हैं, ठीक है। ये जो है आपका ब्लू कलर है वो वेन है, और जो रेड कलर है वो आर्टरी है, ठीक है। अभी आपका जो देखिए ये जो लाइनिंग है यहाँ पर पूरा सेल से कवर हुआ है। ये सेल, एक सेल को हमने 4th पिक्चर में दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड में बहुत सारे सेल है, ठीक है। ये एक फोल्ड को यहाँ दिखाया। आप देखिए इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इधर है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक फोल्ड है, एक फोल्ड में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विली है, और इसका एक विली को हमने यहाँ दिखाया। तो एक विली में कितने सारे सेल्स होते हैं और वहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है। अभी एक सेल को हमने यहाँ पर दिखाया जिसमें कि आपका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है माइक्रोविली। तो अभी देखिए उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना अब्जॉर्प्शन इजी होगा, ठीक है। तो अभी फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, और वो डाइजेस्टेड फूड अभी इसके थ्रू आपका
एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। वो ऑब्जर्व होके कहाँ जाएगा, ये ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, और ये ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा, और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब वो फूड ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और उसमें से एनर्जी रिलीज होगा हर एक सेल में। अच्छा, अब ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, this is the cecum, this part is cecum, this is appendix, this is your valve, this is the part of the small intestine where it is attached to the large intestine. Here there is a valve which prevents the backflow of the food into the small intestine. So this is called ileocecal valve. Now the food is digested and absorbed. Now what happens, the undigested food along with the fluid that contains the minerals and the vitamins passes through the colon. Okay, so this is your ascending, transverse, then descending colon. While passing through the colon, this is initially a completely fluid was there. Now what happens, as it passes through this, the water is absorbed. Water is absorbed by its wall. Okay, so अभी आप देख सकते हैं पहले ये फ्लूइड था, अभी धीरे धीरे absorb हो गया वाटर, फिर ये सेमी फ्लूइड हो गया. ओके, देन इट फॉर्म्स ए मस. मस मीन्स सेमी फ्लूइड से और थोड़ा वाटर चला जाए तो वो मस हो जाता है. देन सेमी मस मतलब और थोड़ा ड्राई हो गया. देन सेमी सॉलिड. ओके, अभी सेमी सॉलिड जो है दैट इज द स्टूल, and that semi-solid structure, semi-solid substance which contains the undigested food material is stored in the rectum, and when pressure is created it is released through the anus. Okay, so what is its function? Its function is absorptive. So what is absorbed? Water is absorbed, then vitamins and minerals that is present in our food are absorbed, and besides that its function is to store the stool or the undigested food material for defecation, for its removal from the body. Now assimilation. So as I have shown you that blood vessels are supplied here, the food absorbed, the digested food is absorbed and it goes to the blood vessels. Okay, now through the blood vessel the digested and dissolved food are taken to different parts of the body where it is distributed and they become a part of the cell. Okay, and in the cell the mitochondria is there, and the mitochondria helps in oxidizing the food and liberating the energy. Okay, and that energy is utilized for building of new tissues and the repair of the old tissues. Now this is the last step of nutrition. The unabsorbed food is sent into the large intestine, which I have already shown you with the help of diagram, where the villi, in the large intestine also the villi are present, which absorb the water from this material. Then the rest of the material is removed from the body via the anus. Okay, and the exit of the waste material is regulated by anal sphincter. I will show you the anal sphincter. This is the anal sphincter. So it is closed, it is tightly closed, but when in the rectum the stool is full, it is filled with stool, then the pressure is created and this opens and it comes out. Okay,
Now basic structure of tooth, it is a part of your syllabus, that's why I am going to discuss this. So mainly a single tooth consists of these three parts. Enamel, it is the hardest part in the body, okay, harder than the bones. Remember, enamel is the hardest part in the whole body, even harder than the bone, okay. Then the next part is dentine, it is similar to bone. Then pulp cavity. The pulp cavity is the cavity present in the tooth which has nerves and blood vessels, okay. So this is the structure of tooth. Here you can see the three parts I will show you. This is the part, the projected part, जो हमको ऊपर दिखता है, जो टूथ का जो पोर्शन, उसको कहा जाता है क्राउन, ओके। अच्छा, उसके बाद जो पोर्शन हमको जॉ के साथ जुड़ता है टूथ को, उसको कहा जाता है नेक, ओके। देन ये हो गया आपका जॉ के अंदर जो पोर्शन रहता है टूथ का, उसको कहा जाता है रूट, ओके। अभी टूथ का हम थ्री पार्ट्स देखेंगे। पहला पार्ट क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट इज एनामल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इवन स्ट्रॉन्गर देन द बोन, ठीक है। एनामल इज वाइट एंड शाइनी स्ट्रक्चर। एनामल के नीचे क्या है? आपका डेंटाइन है, जो कि बोन के जैसा है, हार्ड है और बोन के जैसा है। उसके बाद आप एक कैविटी देख सकते हैं, ये एक कैविटी है जिसको कहा जाता है पल्प कैविटी, ओके। ये पल्प कैविटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो रेड कलर है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, रेड और ब्लू कलर का, ठीक है। दीज आर ब्लड कैपिलरीज एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स, वेन एंड आर्टरी। ब्लू कलर वेन है और रेड कलर आर्टरीज है, ये दोनों मिला के आपका कैपिलरी बना है। इसका मतलब टूथ इज ऑल्सो लाइव बिकॉज इट इज सप्लाइड विथ नर्व फाइबर भी सप्लाई होता है, क्योंकि आप देखो एनामल कहीं अगर टूट जाए तो आपका क्या होता है? झंझनाहट होता है। हम जब कुछ खाते हैं, खट्टा ठंडा या गर्मी खाते हैं तो झंझनाहट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया पल्प कैविटी, उसके बाद हो गया आपका डेंटाइन, then is enamel, okay. So this is the structure of typical structure of a tooth. Next another part that is included in your syllabus, how tooth decays. Generally the food that we take that mainly contains sugar, or children do like to eat the food which is rich in sugar, okay. So when we eat such food, that is where the sugar content is more, then what happens? The bacteria present in our mouth reacts with the sugar and makes it acid, makes the acid, okay. And that acid destroys the enamel. टूथ का जो एनामल होता है इस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी हमारा जो शुगर है यहाँ आकर एक लेयर बना देता है, प्लैक कहा जाता है उसको। बनाने के बाद यहाँ जो माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी एसिड क्या करता है? एनामल को खा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है आपका, ये जो एसिड एनामल को डिस्ट्रॉय करने के बाद धीरे धीरे डेंटाइन को भी ख़त्म कर देता है, डेंटाइन को भी नष्ट करने लगता है। ये है डेंटाइन, okay. Now saliva neutralizes the acid and thus our teeth are saved. Saliva ये हर किसी के मुंह में होता है, बकल कैविटी में होता है, हर किसी के टूथ के साथ होता है, लेकिन सलाइवा अल्कालाइन है और ये एसिड रिलीज करता है, तो ये उसको न्यूट्रल कर देता है। लेकिन अगर हम दांत को ठीक से साफ़ नहीं करेंगे, रात को सोने से पहले साफ़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रात को तो सलाइवा सिक्रेशन बंद हो जाता है, हम सो जाते हैं। तब क्या होता है? ये बैक्टीरिया ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं और जो डिपोजिटेड फूड
एनामेल के ऊपर जो फूड या फिर टूथ के बीच बीच में जो गैप होता है, दो टूथ के बीच जो गैप होता है, उस गैप के में जो फूड होता है, उस फूड के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं, ठीक है, और उसको कहा जाता है प्लैक। सो इसीलिए ब्रशिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये प्लैक के वजह से सलाइवा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो टूथ है धीरे धीरे गलने लगता है, एनामेल और डेंटाइन, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड टूथ डिके, ओके। और धीरे धीरे ये जब आपका एसिड नर्व जो होता है, पल्प कैविटी में जो नर्व होता है, उस नर्व के कांटेक्ट में आ जाता है, तब ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और जो मैंने बोला झंझनाहट महसूस होता है, वो इसी एसिड के वजह से होता है। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू about taking care of our teeth, and we have to brush our teeth before going to the bed, and this practices should be adopted by mainly by the children, okay. Now here you can see a healthy tooth, okay. ये एक हेल्दी टूथ है जिसको एनामेल हम देख पा रहे हैं। ये एक देखिए डिके टूथ जिसमें टूथ डिके हो चुका है, धीरे धीरे देखिए ये एनामेल को नष्ट कर दिया है और अंदर की तरफ चला गया है। और धीरे धीरे ये क्या करेगा, आपका पल्प कैविटी तक चला जाएगा, वहाँ नर्व को अफेक्ट करेगा। जब नर्व को एसिड टच करेगा तो तब दांत में बहुत दर्द होता है, ठीक है। सो आई होप you understood everything that is regarding the digestion of food, different components of food in different parts of the digestive system, and then the structure of tooth and how the tooth decay occurs, okay. So with this the nutrition part is over. So in next part we'll start discussing respiration, the another life process. So this is the first life process as per your textbook. I have already discussed in 6 parts. So I hope you liked this video. If you have any queries, you can ask me in the comment section as usual, and for improvement of the video also you can suggest in the comment box, okay children. Thank you.